Hello everyone. We are back again with a new topic. I am SDS Sir, Faculty of English at Resonance Adventures, and today we'll take up a chapter, Indigo, from Flamingo, a topic of class 12. This chapter Indigo is written by Louis Fisher, and this chapter is all about the father of a nation, Mahatma Gandhi ji. This chapter is an excerpt from the book written by Louis Fisher. Louis Fisher ने एक book लिखी थी The Life of Mahatma Gandhi, and this chapter is apart from that particular book written by Louis Fisher. This chapter is all about how Gandhiji decided the departure of the Britishers from our country. इस चैप्टर में पता चलता है गांधी जी ने कैसे निश्चय किया था इन द ईयर 1917 गांधी जी ने निश्चय कर लिया था कि मैं अंग्रेजों को अपने देश से भगाकर ही दम लूंगा. This chapter talks about the condition of the poor peasants of चंपारण. चंपारण एक रिमोट प्लेस है बिहार के अंदर, एंड वहां के जो किसान थे उनकी जो तकलीफों थी, गांधी जी ने उस तकलीफों का अंत किया था चंपारण में जाकर. And this chapter tells us about the British high-handedness and oppression and the contribution made by the masses to the freedom of movement. तो इस चैप्टर में हमको पता चलेगा कि कैसे अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी अपने गरीब किसानों के ऊपर, एंड कैसे जब सब किसान एकजुट हुए गांधी जी की लीडरशिप के अंदर, then how all these things led to the freedom of a country, and भारत लेटर ऑन आजाद हुआ था 1947 के अंदर. Now, what is indigo? Indigo is a commercial crop and it is used as a dye. और ये चैप्टर इज ऑल अबाउट द चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी ने यहाँ कर आकर गरीब किसानों की मदद की थी और अंग्रेजों को चंपारण से जाने के लिए कंपेल किया था. So let's start the chapter Mahatma Gandhi. Gandhiji tells that he had decided कि अंग्रेजों को मैं अपने देश से हटा कर रहूंगा, एंड इन्होंने निश्चय किया था in the year 1917. And how the things started. Gandhiji once in December 1916 had gone to an annual convention. गांधी जी एक एनुअल जनरल मीटिंग में गए थे लखनऊ इन द ईयर 1916 इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओवर देयर गांधी जी के सामने एक गरीब किसान आया, एंड ही टोल्ड गांधी जी, I am Rajkumar Shukla. I have come from Champaran. Please come and help us. Gandhiji had never seen this Rajkumar Shukla. And plus Champaran एक इतनी छोटी जगह थी, remote place थी, that Gandhiji even did not know where the Champaran lies. Champaran lies in the foothills of Himalayas near the kingdom Nepal in Bihar. Gandhiji उन दिनों में in the year 1916 was not so famous a person. Rajkumar Shukla also did not know Gandhiji. He had come to this annual meeting. वो इस just general meeting में आए थे चंपारण के गरीब किसानों की तकलीफों को बयां करने के लिए. He wanted a lawyer. Somebody told Gandhiji is a lawyer, and in this way, as a stranger, वो गांधीजी के समक्ष प्रकट हुए. Gandhiji told Rajkumar Shukla about his various appointments. Gandhiji told that I have to go to Kanpur. मुझे यहाँ से कानपुर जाना है, and various other जगहों पे. But Rajkumar Shukla was determined. वो दृढ़ निश्चय कर लिया था उसने कि मैं गांधीजी को अपने संग लेकर ही जाऊंगा. So after Lucknow, Gandhiji went to Kanpur and various other places for his meetings. But wherever Gandhiji went, Rajkumar Shukla followed him. After all the meetings, Gandhiji reached his ashram at Gujarat. राजकुमार शुक्ला गांधी जी के संग संग उनके आश्रम गुजरात तक पहुंच गए.
Gandhiji was impressed by the tenacity, the determination of राजकुमार शुक्ला. गांधी जी काफी प्रभावित हुए राजकुमार शुक्ला का दृढ़ निश्चय देखकर. And he told him that on such and such a date, I have to go to Calcutta. You meet me over there. From there, I will come along with you to your place चंपारण. तो गांधी जी ने उसको एक तारीख दे दी कि फलाना फलाना तारीख को मुझे कलकत्ता मिलना, वहां से मैं तुम्हारे संग तुम्हारे चंपारण चलूंगा. Months passed and Rajkumar Shukla waited anxiously for Gandhi ji to arrive on that date. काफी उत्सुकता से गांधी जी का इंतजार करने लगा राजकुमार शुक्ला. नाउ किस तकलीफ को बयां करने, किस तकलीफ में सुधार करने के लिए राजकुमार शुक्ला हैड कम टू लखनऊ, क्यों गांधी जी को अपने संग लेकर जाते थे, उस बारे में. द बैकग्राउंड. ऑल द अरेबल लैंड्स इन चंपारण, जो भी फर्टाइल कल्टीवेबल उपजाऊ जमीन थी, कंट्रोल बाय ओन बाय द इंडियन फार्मर्स. They were controlled by the Britishers and the landlords. उनकी दादागिरी चलती थी अंग्रेजों की, जमींदारों की. And our poor farmers were sharecroppers, means share basis पे उनको खेती करनी पड़ती थी. And हमारे गरीब किसान, they were working as tenants on their own lands. अपने खुद के खेत पर काम करने के लिए उनको किराया देना पड़ता था. तो as per an ancient arrangement, एक पुराना अग्रीमेंट के अनुसार, these sharecroppers of Champaran, they had to cultivate indigo on 15% of the land. तो इन गरीब किसानों को जबरदस्ती एक पुराने अग्रीमेंट के अनुसार उनकी जो भी जमीन थी, उस जमीन के ऊपर 15% जमीन पर उनको इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी. And the complete indigo crop, they had to give it to the Britishers in the form of a rent. और किराए के तौर पर पूरी फसल इंडिगो की किसानों, गरीब अपने अंग्रेजों को देते थे. It was a monopoly of indigo in the world market and Britishers had this monopoly. Later on, कुछ सालों के बाद, it came to be known that Germany has developed synthetic indigo. चर्चा में आई बात that जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनानी शुरू कर दी है. नाउ अब ये जर्मन इंडिगो was a threat to the competition of the British indigo in the world market. Now the Britishers had no use because this competition was there. But Britishers did not tell this thing to our poor farmers. उन्होंने इस बात को गरीब किसानों को नहीं कहा. The Britishers themselves wanted money. So now they cheated our poor farmers. उन्होंने हमारे गरीब किसानों को बेवकूफ बनाया. They told them that तुम एक नई agreement बनाओ. You sign a new agreement stating that we want to be free from the earlier agreement of 15% indigo cultivation. And for this, we will pay you one-time compensation. तो उन्होंने गरीब किसानों से लिखवाया that हम इस पुराने अग्रीमेंट से छुटकारा पाने के लिए हम एक मुशक्कत पैसा दे देंगे, हम आपको मुआवजा देंगे उस अग्रीमेंट से छुटकारा पाने के लिए. ये उन्होंने लिखवाया. दिस 15% इंडिगो तकलीफदायक काम था किसानों के लिए. सो मेनी ऑफ देम साइन द अग्रीमेंट विलिंगली. कुछ गरीब किसानों ने अनपढ़ थे ही बेचारे, यस, बट उन्होंने इस छुटकारा पाने के लिए उस अग्रीमेंट को साइन किया. सम ऑफ द फार्मर्स दे प्रोटेस्टेड. उन्होंने इस चीज का विरोध किया. द ब्रिटिशर्स हायर्ड ठग्स. उन्होंने अपने हट्टे कट्टे गुंडे बैठा लिए पैसे वसूल करने के लिए. तो जबरदस्ती, धोखे से, दादागिरी से द ब्रिटिशर्स एक्सॉर्टेड मनी. जबरदस्ती उन्होंने गरीब किसानों से पैसे लिए. Later on, the farmers came to know about the German indigo. अब उनके पास ये खबर आ गई कि अंग्रेजों ने उनको बेवकूफ बनाया है, क्योंकि उनको इंडिगो की कोई जरूरत नहीं है, जर्मन इंडिगो मार्केट में आ गई है. Now they wanted their money back. But क्या the Britishers would give the money? सवाल ही नहीं है.
and some of the farmers they took the help of the court of law. उन्होंने वकीलों की मदद की और कानून के दरवाजे खटखटाए. But fighting a case against the Britishers in the British court, would the Indian farmers would get any justice? सवाल ही नहीं, क्या उनको कुछ न्याय मिलता? उनको सिर्फ एक ही चीज मिली होगी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. एंड आवर पुअर फार्मर्स, उनका जो डर था अंग्रेजों के प्रति वो दिनों दिन बढ़ता चला गया और वो दिनों दिन गरीब से और गरीब होते चले गए. So this was the miserable, pitiable condition of the sharecroppers of Champaran. They wanted a lawyer to help them to get justice. वो इसका न्याय के लिए कोई लॉयर ढूंढ रहे थे और इसीलिए राजकुमार शुक्ला had gone to Lucknow and he wanted the help of महात्मा गांधी. Now, ये था चैप्टर पीछे का बैकग्राउंड. गांधी जी ने एक डेट दी थी राजकुमार शुक्ला जी को टू मीट एट कैलकाटा. व्हेन गांधी जी वाज फ्री, राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी दोनों दे टुक अ ट्रेन टू पटना इन बिहार. दोनों ने ट्रेन पकड़ी. पटना में जाकर राजकुमार शुक्ला took गांधी जी to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद. राजेंद्र प्रसाद, the father of the nation. गांधी जी did not know राजेंद्र प्रसाद, but राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद जी को जानता था. राजेंद्र प्रसाद was out of town. The servants of राजेंद्र प्रसाद जी, they knew राजकुमार शुक्ला that वो एक गरीब किसान है and untouchable from चंपारण, and he keeps on coming here, और उनके मालिक को परेशान करता है कि हमारी मदद करने चलो चंपारण. So the servants of Rajendra Prasad knew Rajkumar Shukla. They assumed Gandhiji also to be a poor farmer, untouchable from Champaran. तब ये छोटी जाति, बड़ी जाति, all these things, caste discrimination prevailed a lot. So servants को लगा कि गांधी जी भी एक छोटी जाति के गरीब किसान होंगे. So when Gandhiji wanted to take out water from the well, जब उनको कुएं से पानी निकालना था, the servants did not allow Gandhiji. क्योंकि how could the servants know that Gandhiji is not an untouchable? किसान servants को कैसे पता चलता कि गांधी जी एक छोटी बिरादरी के गरीब किसान नहीं. After this, चंपारण जाने के पहले गांधी जी डिसाइडेड फर्स्ट टू गो टू मुजफ्फरपुर, बिकॉज एट मुजफ्फरपुर गांधी जी न्यू अ फ्यू लॉयर्स, एंड गांधी जी लॉयर्स को मिलना चाहते थे बिकॉज राजकुमार शुक्ला वाज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन. वो इस केस की ज्यादा डिटेल्स शायद गांधी जी को नहीं बता सकता था. सो केस की सब डिटेल्स जानने के लिए गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर. गांधी जी एक सेंट अ टेलीग्राम to Professor J.B. Kripalani. J.B. Kripalani जी को गांधी जी ने टेलीग्राम किया एंड गांधी जी कृपलानी जी को मिले थे टैगोर जी के शांति निकेतन स्कूल के अंदर. The train arrived at Muzaffarpur station on midnight 15th April 1917. So यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि कितना धैर्य था, कितना पेशेंस था राजकुमार शुक्ला के अंदर. वो गांधी जी को मिले थे दिसंबर 1916 में एंड अब चंपारण की तरफ उन्होंने यात्रा स्टार्ट की थी एंड इट वाज 15th April 1917. कृपलानी जी had come with many students to welcome Gandhi ji. In Muzaffarpur, Gandhi ji stayed at a house of a government teacher, Mr. Malkhani. 2 दिन गांधी जी वहां पर रुके अपनी कार्यवाही करने के लिए टू मीट द लॉयर्स. एंड गांधी जी फेल्ट वेरी स्ट्रेंज. गांधी जी को काफी अजीब लगा दैट मलखानी जैसा गवर्नमेंट टीचर इज गिविंग सपोर्ट और शेल्टर इन हिज हाउस. सो मलखानी जी एक गवर्नमेंट टीचर था,
गवर्नमेंट अंग्रेजों की थी एंड मलखानी जी वॉज गिविंग शेल्टर टू गांधी जी हु वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये वो टाइम था कि जो वकील स्वराज के लिए लड़ाई लड़ते थे लोग उनसे थोड़ा सा दूर रहते थे। सो गांधी जी फेल्ट वेरी स्ट्रेंज दैट अ गवर्नमेंट टीचर इज गिविंग shelter in his own house to a lawyer like Gandhiji. Over there, now Gandhiji met all the lawyers. Gandhiji asked the lawyers about the case. Lawyers ने गांधी जी को बताया that how frequently they would visit the court in groups. कैसे पूरे ग्रुप में कोर्ट में जाते थे कार्यवाही के लिए. They told Gandhiji about the case and they also told Gandhi about the fees they charged from the poor farmers. उन्होंने गांधी जी को ये भी बताया, केस के बारे में बताने के बाद ये भी बताया कि कितनी फीस वो चार्ज करते थे गरीब किसानों से। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, गांधी जी ने गुस्सा किया लॉयर्स को टू चार्ज सच फीस फ्रॉम द पुअर फार्मर्स एंड ही टोल्ड द लॉयर्स, आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने अब निश्चय कर लिया है कि अब ऐसे केस को कोर्ट लेकर नहीं जाएंगे। हमारे गरीब किसान, उनका जो डर है ब्रिटिशर्स के प्रति, दैट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड दे आर बिकमिंग पुअरर डे बाय डे। आई वांट टू गिव देम रिलीफ फ्रॉम फियर। मैं इनका जो डर है उस डर से छुटकारा दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे केस को कानून की मदद लेके कोई हल निकलने वाला नहीं है, सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिलने वाली है। एंड मैंने निश्चय कर लिया है अब इस केस को कानून के दरवाजे हम नहीं खटखटाएंगे। एंड दिस वाज अग्रीड बाय एवरीवन। जब गांधी जी चंपारण की तरफ चले थे, फार्मर्स फ्रॉम फार एंड अदर डिस्टेंट प्लेसेस दे केम टू नो कि एक महात्मा जैसा इंसान उनकी मदद करने के लिए चंपारण आ रहे हैं। एंड मैनी फार्मर्स फ्रॉम फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस दे स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स चंपारण। चंपारण की तरफ दूर दराज के किसान यहाँ पर आने लगे। गांधी जी फर्स्ट वेंट टू द तिरहुत डिवीजन वे चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट लगती थी तिरहुत डिवीजन में। ओवर देयर गांधी जी वहां पर गए एंड गांधी जी मेट द सेक्रेटरी ऑफ द लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। वहां का जो सेक्रेटरी था जमींदारों के एसोसिएशन का, उसको गांधी जी मिले। And Gandhiji asked him the details of all the land owned by the sharecroppers. पूरी जानकारी हासिल करना चाहते थे हर खेतों की, किसानों की। गांधी जी was told no information will be given to any outsider. गांधी जी ने उनको जताया, मैं बाहर का इंसान नहीं हूं, मैं अपने भाइयों की मदद के लिए यहां पर आया हूं। The commissioner over there now started bullying गांधी जी। जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को धमकाया एंड गांधी जी को तिरहुत डिवीजन छोड़कर जाने के लिए कहा गया। गांधी जी तो गांधी जी थे। इंस्टेड ऑफ लिविंग द डिस्ट्रिक्ट ही वेंट टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। गांधी जी सेंटर में, चंपारण की कैपिटल मोतिहारी में जाकर बैठ गए एंड ओवर देयर ही स्टार्टेड गैदरिंग all the evidences against the Britishers and the landlords. So गांधी जी मोतीहारी जाकर सेटल हो गए और वहां से पूरी अपना इन्वेस्टिगेशन, अपनी कार्यवाही वहां से शुरू करी। उसी दौरान गांधी जी got a news that a poor farmer has been ill treated by the Britishers. गांधी जी को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक किसान को बुरी तरह से पीटा गया है। नेक्स्ट डे गांधी जी स्टार्टेड ऑन एन एलिफेंट बैक, हाथी पर सवार होकर गांधी जी उस गांव की तरफ चले। एट द सेम टाइम पुलिस वैन केम एंड टोल्ड गांधी जी टू कम बैक अलोंग विद देम। गांधी जी को अपने संग लौटने के लिए पुलिस ने कहा। गांधी जी ऑब्लाइज, गांधी जी ने उनकी बात मान ली। गांधी जी वॉज ब्रॉट बैक होम एंड ओवर देयर गांधी जी वॉज गिवन अ रिटर्न नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दी गई, चंपारण छोड़कर अभी के अभी चले जाओ। गांधी जी साइन द रिसीट कि मुझे नोटिस प्राप्त हुई,
but he wrote, I disobey your orders. गांधी जी ने नोटिस प्राप्त करने के सिग्नेचर किए, बट पीछे लिख दिया, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता. In consequence, Gandhi ji received a summons to be present in the Motihari court the next day. क्योंकि गांधी जी ने ऑफिशियल आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए गांधी जी को कोर्ट का आदेश आ गया कि मोतिहारी कोर्ट में कल पधारो अपनी पेशी के लिए. So, what was the case now put up on Gandhi ji? It was a case of civil disobedience. किसी साधारण आदमी द्वारा कानून की आज्ञा का पालन न करना, यह गुनाह सिविल डिसोबीडियंस was put up on Gandhi ji. Gandhi ji whole night remained awake. He sent a telegram to Mr. Rajendra Prasad to come with influential lawyers. गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम किया कि अच्छे अच्छे वकीलों को लेकर यहाँ पर आइए. Whatever report Gandhi ji had prepared till now, he wired, he sent or telegraphed that entire report to the British Viceroy. Viceroy is the high designated British officer. तो उस अफसर को गांधी जी ने अपनी पूरी रिपोर्ट टेलीग्राफ करी. And Gandhi ji also sent some instructions to his ashram in Gujarat. गांधी जी का जो गुजरात में आश्रम था, वहां भी गांधी जी ने अपने लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आदेश भेज दिए. अगले दिन गांधी जी पहुंचे मोतिहारी कोर्ट. नाउ फार्मर्स जो दूर दराज से आए थे, दे केम टू नो, उनके पास ये ब्रेकिंग न्यूज पहुंच गई थी दैट जो महात्मा उनकी मदद करने आए थे, ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम विद द ऑफिशियल्स, वो कुछ परेशानी में है. सो टू प्रोटेस्ट हिज अरेस्ट, थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, हजारों की संख्या में किसान मोतिहारी कोर्ट के आगे आ गए थे. एंड दे वर प्रोटेस्टिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, वो गांधी जी के अरेस्ट का विरोध करने के लिए हजारों की संख्या में वहां पर आ गए थे. The prosecutors and the officials were confused, baffled. उनको समझ नहीं आया कि इतनी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाए. गांधी जी was very friendly to the Britishers, and it was Gandhi ji who regulated the crowd. गांधी जी ने खुद उस भीड़ को कंट्रोल किया. And Gandhi ji told the officials, अंग्रेजों को बता दिया, look, till now you are acting above the law, but now my farmers are ready to challenge you. अब तक तुम्हारी हुकूमत चलती थी, बट देखो अब हमारे भाइयों, हमारे भाई लोग तुम्हारा सामना करने को तैयार हैं. गांधी जी वॉज नाउ टेकन इनसाइड द कोर्ट, और बाहर के हालात देखकर इवन द प्रोसिक्यूटर्स वर कंफ्यूज्ड कि क्या किया जाए, क्या सजा गांधी जी को सुनाई जाए. दे वांटेड सम टाइम, उनको कुछ एक्स्ट्रा समय चाहिए था टू कंसल्ट विद देयर सुपीरियर्स. उनको अपने जो सीनियर्स थे, सुपीरियर्स है, उनसे विचार विमर्श करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था. सो द मैजिस्ट्रेट टोल्ड दैट द प्रोसीडिंग ऑफ दिस केस will now continue after an interval of 2 hours. And in 2 घंटे के लिए गांधी जी was told to furnish a bail. Bail is जमानत. So हालात को देखकर बाहर के मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सुनवाई 2 घंटे बाद चलेगी, एंड उस 2 घंटे के लिए गांधी जी को बेल जमानत देने को कहा गया. सो गांधी जी was now being treated as a criminal. उस 2 घंटे के लिए उनसे जमानत मांगी गई. गांधी जी रिफ्यूज्ड. गांधी जी प्रोटेस्टेड द डिले. जब कार्यवाही में देरी हुई तो गांधी जी ने उस चीज का विरोध किया. एंड गांधी टोल्ड आई एम गिल्टी. गांधी जी ने कहा मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा सुनाओ. बट गांधी जी रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. उन्होंने कहा आई डिड नॉट वांट टू सेट अ एग्जांपल ऑफ लॉ ब्रेकर. मैं कानून तोड़ने वाले का उदाहरण या गलत उदाहरण सेट करने यहां पर नहीं आया. I disobeyed your orders because I obeyed the voice of my inner conscience. मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया क्योंकि मैंने मेरी अंतरात्मा की आज्ञा का पालन किया. मैं हूं गुनहगार, मुझे सजा सुनाओ. But गांधी जी
refused to pay the bail. The magistrate set Gandhiji free for those 2 hours without a bail. जो मैजिस्ट्रेट था गांधी जी को उस 2 घंटों के लिए जो कार्यवाही के लिए वो मांग रहे थे, उस 2 घंटे के लिए गांधी जी को फ्री छोड़ दिया बिना किसी जमानत के, क्योंकि गांधी जी अड़ गए थे. After 2 hours, when the court reconvened, जब 2 घंटे बाद कोर्ट जब दोबारा शुरू हुई, so the magistrate announced that the proceeding of this case will now continue after a few hours. ये जो कोर्ट की जो सुनवाई है वो अब कुछ दिनों के बाद होगी, कुछ दिनों के लिए उस सुनवाई को टाल दिया गया. And for those unlimited days, गांधी जी was set at liberty. गांधी जी को उन दिनों के लिए जब तक कि सुनवाई ना होती गांधी जी को आजाद छोड़ दिया गया. सो ये था गांधी जी का खौफ. कहाँ तो फॉर 2 hours गांधी जी से जमानत मांग रहे थे, एंड नाउ फॉर दिस अनलिमिटेड डेज गांधी जी वाज सेट फ्री. नेक्स्ट डे गांधी जी मेट ऑल द लॉयर्स इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू और बड़े बड़े वकील थे. गांधी जी उनसे मिले. गांधी जी को पता था आज नहीं तो कल शायद गांधी जी माइट बी पनिश्ड. सो गांधी जी आस्क्ड द लॉयर्स, व्हाट विल ऑल ऑफ यू डू इफ आई एम सेंट टू जेल? अगर मुझे जेल भेज देते हैं तो आप क्या करोगे? द लॉयर्स टोल्ड, करना क्या है? वी हैव कम हियर ओनली टू हेल्प यू. If we are sent to jail, we will go back home. हम तो सिर्फ आपकी मदद के लिए आए, आपकी एडवाइस देने आए, बट अगर आपको जेल होती है हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो अपने अपने घर चले जाएंगे. गांधी जी asked them, what about the injustice to these poor farmers for whom I am here? गांधी जी ने उनको पूछा, इन गरीब किसानों को जो अन्याय हो रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? All the lawyers withdrew to consult. सब एक लॉयर्स एकजुट हुए और आपस में इन्होंने विचार विमर्श किया. That गांधी जी is a stranger in this unknown place, and in spite of it, he is ready to go to jail. उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया तो गांधी जी तो एक अजनबी है और इस अनजान नगरी में अनजान लोगों के लिए जेल तक जाने को तैयार है, भले ही गांधी जी इन लोगों को जानते नहीं है. And if they, that is these lawyers who belong to the same locality and who has served the lawyers, if they go back, it will be a shameful desertion. तो उन्होंने विचार विमर्श किया कि गांधी जी तो अजनबी है और अनजान लोगों के लिए भी जेल जाने को तैयार है, और अगर ये लॉयर्स जो इसी इलाके के हैं, उन्होंने इन किसानों के संग काम भी किया है, उनका नमक भी खाया है, अगर वे चले जाते हैं तो एक शर्मनाक बात होगी. So they came to Gandhiji and they told, if Gandhiji you are sent to jail, we also will follow you to jail. अगर आपको जेल होती है हम भी तुम्हारे संग जेल आने को तैयार हैं. So this जेल भरो आंदोलन was a weapon of गांधीजी. गांधीजी का एक तरीका था नॉन वायलेंस का जेल भरो आंदोलन. So when the lawyers were now willing to help Gandhiji or come along with Gandhiji to the jail, गांधीजी ने इसी समय made a statement, the battle of चंपारण is won. गांधीजी ने इसी वक्त कहा, चंपारण में मेरी जीत हो चुकी है. अभी तो चंपारण की जंग बची थी, बट 2 कारण थे. आउटसाइड द कोर्ट गांधीजी ने देखा कैसे अंग्रेजों का सामना करने के हमारे लोग तैयार हो गए थे. एंड सेकंड थिंग, there was a sense of unity and the lawyers were now willing to help the farmers. So this is the reason Gandhiji told the battle of Champaran is won. Few days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate stating that the case against Gandhiji has been dropped. गांधीजी के जो केस लगा था सिविल डिसोबीडियंस के लिए, वो केस निरस्त कर दिया था, खारिज कर दिया था. द केस वॉज ड्रॉप्ड एंड वेरी राइटफुली. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया.
पहली बार ऐसा हुआ होगा भारतीय इतिहास के अंदर कि एक साधारण आदमी द्वारा कानून की आज्ञा की अवहेलना करने का जो गुनाह था, उस गुनाह में भी जीत प्राप्त हुई थी एंड सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया. Now Gandhiji was physically and mentally free and all the investigations started. जोर शोर से investigations शुरू हुई. More than 10,000 depositions गवाह जमा हुए. The statements were taken, notes were made and काफी तहलका मचा हुआ था उस इलाके के अंदर. In the month of June, Gandhiji was summoned by the Lieutenant Governor Mr. Gate. गांधी जी को बुलाया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा. बिफोर गोइंग गांधी जी मेट द लॉयर्स एंड लेड आउट द डिटेल प्लान्स कि अगर गांधी जी लौटकर नहीं आते हैं, कोई सजा गांधी जी को सुनाते हैं वहां पर, तो इन लॉयर्स को व्हाट दे हैव टू डू इन हिज एब्सेंस, इन लॉयर्स को क्या काम करना है गांधी जी की एब्सेंस में. नाउ गांधी जी वेंट टू द मीटिंग. 4 protracted interviews, 4 विस्तार पूर्वक बातों का सिलसिला चला. And to look into the problem of the sharecroppers, an inquiry committee was set up. एक inquiry committee बनाई गई इन गरीब किसानों की पीड़ा जानने के लिए. Now, in this committee, there were the Britishers, the landlords, British officials, and the only representative of the farmers was Gandhiji. So गांधी जी एक अकेले थे इन गरीब किसान के representative. The talks took place and later on it was concluded. निष्कर्ष ये निकला, yes, the landlords have illegally, deceitfully extorted money from the sharecroppers. निष्कर्ष ये निकला कि इलीगल ढंग से, जबरदस्ती और धोखे से these landlords have taken money from the sharecroppers. Refund तो उनको करना पड़ेगा. But the question was how much? Gandhiji asked only 50% of the amount as refund. The representatives of the Britishers and landlords who were negotiating, they thought that now Gandhiji has asked 50% and he will be adamant. गांधीजी अड़ जाएंगे 50% अमाउंट पे. तो अज्यूमिंग कि शायद गांधीजी इसके नीचे ना माने, they gave a counter offer of 25% amount as refund. And Gandhiji took them at the word. Gandhiji told, done. तुम 25% दे रहे हो, चलो दो 25%, 25% पे मैं मानता हूं. एंड thus गांधीजी broke the deadlock. जो एक खींचतान चल रही थी, गांधीजी ने उसको खत्म कर दिया. So it was shocking that Gandhiji agreed for 25% of the refund. Now Gandhiji explained, गांधीजी का एक विजन अलग था. And Gandhiji told everyone, money is important, but at this stage money is secondary. The Britishers have given a part of the money and along with it they have also lost a part of their prestige. उनके पैसे तो कम हुए हैं, उनकी जो इज्जत है, उनका जो सम्मान है, वो भी कम हो गया है. दिस इज अ मॉरल डिफीट ऑफ द ब्रिटिशर्स. ये अंग्रेजों की एक हार है. उन्होंने घुटने टेके हैं हमारे आगे by giving us the refund of 25%. This decision of Gandhiji was adopted unanimously. एक मत से गांधी जी का ये डिसीजन of 25% amount refund भी स्वीकार किया गया. This decision brought colors. गांधी जी का ये डिसीजन रंग लाया. After some time, the Britishers, the landlords, reverted the land back to the peasants and the Britishers quit चंपारण. सो गांधी जी को चंपारण से भगा रहे थे, बाहर जाने के आदेश दिए थे. बट जब अंग्रेजों ने देखा उनकी हार हुई है, उनका सम्मान, उनकी इज्जत भी कम हो गई है, प्लस इंडिगो वॉज ऑफ नो यूज टू दिस लैंडलॉर्ड्स, द ब्रिटिशर्स. सो द ब्रिटिशर्स गेव द लैंड. उन्होंने अपने जो भी खेत लिए थे किसानों के, वो उन किसानों को वापस किए एंड द ब्रिटिशर्स इस जगह को छोड़कर चले गए.
सो ये थी गांधी जी की जीत यहाँ पर। गांधी जी नेवर इन्वॉल्व हिमसेल्फ विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी। गांधी जी जो भी करते थे, ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। गरीबों की जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो तकलीफें थी, गांधी जी उसका सुधार किया करते थे। And Gandhiji was always concerned for the upliftment of the economical and social backwardness. सो भी पिछड़ा वर्ग था, गांधी जी उसमें हमेशा सुधार कार्य करने का सोचते थे। गांधी जी had come to Champaran on the request of an unlettered peasant. गांधी जी यहाँ पर किसके बोलने पर आए थे? एक अनजान गरीब किसान राजकुमार शुक्ला के, उसके बुलावे पर यहाँ पर आए थे। Assuming that it will take only a few days, कुछ दिनों की बात है, but it took Gandhiji's 1 year of his busy life. गांधी जी का 1 साल यहाँ पर गुजर गया। Out of this 1 year, first 7 months, Gandhiji stayed here uninterrupted. गांधी जी बिना हटे यहाँ पर डटे रहे continuous 7 महीने. And then he made regular up and down visits. And गांधी जी जब इतने महीने यहाँ पर रहे थे, he saw Champaran was economically, socially very, very backward. So he wanted some upliftment in this. वो कुछ सुधार कार्य करने की उन्होंने सोचा. He volunteered for teachers. उन्होंने teachers के लिए बुलावा दिया. 2 of Gandhiji's disciples, गांधी जी का जो आश्रम था वहां से उनके 2 शिष्य, महादेव देसाई and नरहरि पारेख, they came to Champaran along with their wives. And many other teachers came from Bombay, Pune and other distant places. और भी जगह से बॉम्बे, पूना और काफी दूर दराज की जगहों से टीचर्स यहाँ पर आए। Because this place was socially, economically, yes, literacy level जरा भी नहीं थे, गंदगी भरी एरिया में रहते थे, no medical facility was there. So गांधी जी wanted to bring some upliftment, इसमें सुधार कार्य करना चाहते थे. So many teachers came over there. गांधी जी ने सिर्फ बाहर वालों को नहीं, अपने घर वालों और घरवाली को भी इस काम में लगाया. कस्तूरबा गांधी came over here with the youngest son Devdas. And Kasturba Gandhi taught the people how to live in clean, hygienic conditions. कैसे clean, कैसे साफ सुथरी और hygienic condition और किस तरह से रहना चाहिए, ये कस्तूरबा गांधी जी ने सिखाया. And बाकी teachers जो आए थे, they spread the literacy and primary schools were opened in 6 villages. 6 गांवों के अंदर primary schools का निर्माण हुआ. हेल्थ फैसिलिटीज वर मिजरेबल, बदतर कंडीशंस थी हेल्थ के भी वहां पर. अ डॉक्टर वॉलंटियर्ड सर्विस फॉर 6 months. वहां पे बीमारियां कॉमन थी, माउथ डिजीज, मलेरिया, स्किन डिजीज. दीज वर द कॉमन डिजीजेस व्हिच प्रिवेल. सो डॉक्टर ने वहां पर आके दवा देना शुरू किया. एंड दोज हु हैड माउथ डिजीज, दे वर गिवन कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल इज अरिंडे का तेल. Those who had malaria, they were given quinine plus castor oil. And those who had skin disease, they were given the sulfur ointment or castor oil. So इस तरीके से हेल्थ को भी धीरे धीरे कंट्रोल किया गया. गांधी जी अक्सर देखते थे that the women, they are moving in torn tattered sari, फटेहाल कपड़ों में रहती थी. So Gandhiji told Kasturba to look into their problems also. Kasturba Gandhiji went to a women's house, and that old lady in a tattered sari, she told Kasturba, "Look, I have no cupboard and no boxes to keep clothes. This sari I am wearing is the only one I have." ये जो फटी हुई साड़ी पहनी है, ये एक ही साड़ी है मेरे पास, and so on. तो ऐसी बदतर कंडीशन थी वहां के लोगों की. And Gandhiji took care of this thing also. And then Louis Fisher कहते हैं, the Champaran episode was the turning point in Gandhi's life. ये जो चंपारण का जो वाकया हुआ था, ये गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. Because Gandhiji had
told the Britishers, or he had shown the Britishers, you cannot order me in my own country. तुम मेरे ही देश में आकर मुझ पर या हम पर हुकूमत नहीं झाड़ सकते. एंड दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न. गांधी जी का काम करने का तरीका ही ये था. वो लोगों के अंदर जोश पैदा करते थे, वो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते थे. एंड गांधी जी ऑलवेज मेड द पीपल बिलीव इन देमसेल्व्स. उन्होंने लोगों में को अपने अंदर अपने आत्मविश्वास जगाने में भी गांधी जी ने काफी मदद करी. एंड ये एक टिपिकल गांधीगिरी थी. गांधी जी का काम करने का तरीका ही ऐसा था. सो नाउ मेनी थिंग्स इन चंपारण was now under control. Now, during this Champaran episode, there was a Britisher whose name is Charles Freer Andrews, and he was a pacifist. Pacifist is a person believing in non-violence. जैसे गांधी जी थे तो वो भी एक अंग्रेज अफसर था, and but he was a अहिंसावादी, and he had become a great follower of गांधी जी. गांधी जी का वो आशिक बन चुका था गांधी जी का काम करने का तरीका देखकर. एंड जब ये सुधार कार्य चल रहा था, द CF एंड्रूज ने भी काफी मदद की थी, गांधी जी के संग काम किया था यहाँ पर. नाउ चार्ल्स फ्रीयर एंड्रूज had to go for an official tour of duty to the Fiji Islands. उसको फिजी आइलैंड जाना था ऑफिशियल टूर पे. एंड ही केम हियर टू बिड फेयरवेल टू गांधी जी. गांधी जी को टाटा बाय बाय बोलने, गांधी जी की आज्ञा लेने यहाँ पर वो आया था. The loyal friends of Gandhi ji. Now it was time for Gandhi ji also to go from Champaran. गांधी जी को काफी समय हो गया था, तो गांधी जी की भी अब चंपारण से जाने का समय आ गया था. But the lawyers told Gandhi ji that it will be a good idea if in your absence Mr. Andrews continues the good work that you have started. आपने जो अच्छा सुधार कार्य का काम शुरू किया यहाँ पर, आपके एब्सेंस में अच्छा रहेगा अगर मिस्टर एंड्रूज इस काम को कंटिन्यू करें. मिस्टर एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी अलाउड. मिस्टर एंड्रूज तैयार थे यहाँ पर रुकने को, गरीब लोगों की मदद करने के लिए, अगर गांधी जी परमिट करते, उसको अलाउ करते. बट गांधी जी रिफ्यूज दिस. गांधी जी टोल्ड एवरीवन दैट हम अपने एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों के संग. वी आर इन फाइट विद द ब्रिटिशर्स एंड द फाइट इज फेयर इनफ. हम अपने हक की लड़ाई रहे हैं. एंड इन आवर फाइट विद द ब्रिटिशर्स वी शुड नॉट सीक अ प्रॉप अ सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ मिस्टर एंड्रूज. हमको अपनी हक की लड़ाई में मिस्टर एंड्रूज जो एक अंग्रेज है, उसकी मदद नहीं लेनी चाहिए. दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट. ये हमारी बुजदिली, हमारी कमजोरी बताती है. वी शुड बिलीव इन आवरसेल्व्स एंड फाइट आवर ओन वॉर. हमको अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए और हमको अपनी खुद की हक की लड़ाई लड़ना चाहिए. Nobody had any reply to this. And in this way, Gandhiji taught a lesson of self-reliance to the people of Champaran. इस प्रकार गांधी जी ने चंपारण के लोगों को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ाया. And then Gandhiji feels that this Champaran episode, civil disobedience, and the lesson of self-reliance are all correlated for the independence of India later on in 1947. ये सब जो भी चीज थी, सिविल डिसोबीडियंस, चंपारण का वाकया था, आत्मनिर्भरता का ये पाठ पढ़ाया था, ये शायद सब चीज मिलके एक हुई. एंड इसी के कारण भारत आजाद हुआ later on in the year 1947. So this is all about this very interesting chapter about Gandhi ji, that कैसे गांधी जी यहाँ पर आए एक अजनबी के बुलावे पर, और कैसे with the help of non-violence he made the departure of the Britishers. So दोस्तों, this is all about this chapter Indigo written by Louis Fisher. So this is all for today from my side. Enjoy your learning, be happy always, and see you again very soon with the next video with the next topic.
of our syllabus. Till then, bye-bye and thank you all.